Thanks a lot, Seher and Dr. Bindya, for introducing me. I'm really overwhelmed by the number of participants and the enthusiasm I can see. Okay. Before I answer your question, Seher, I would like to just introduce the audience what paper modeling is all about, because it's an unheard of art. It's something very new. People know origami, but hardly very few people know what paper modeling is. So that's why I have my setup ready to help you understand what paper modeling is. So paper modeling enables you to make something like this totally out of paper. Okay, so this bike is 1:9 scale model. It's nine times smaller than the original bike, and so paper modeling has no bounds in terms of what is possible, what all can be achieved. For example, this tank. This is a 1:30 scale model of the T-90 Bhishma tank of the Indian Army. So all of these are made completely using paper and nothing else, and that's what paper modeling is about. So it's like designing the things on 3D softwares, and then converting them into 2D prints. You print it out on paper, then you cut the parts with your hand, and then you fold them and join them. So origami नहीं होता ये. Origami में आप glue और scissor use नहीं कर सकते. इसमें आप glue, scissor, जो भी आपको tools use करने आप कर सकते हो, and you can make that. Finding the passion. Sir, it's a very good question. See, the thing is that in my entire experience, what I've seen is that the most difficult part in anybody's journey is finding their passion, because लोगों को पता नहीं होता कि उनका passion क्या है. पूरी पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की. लोगों को नहीं, मतलब I really believe that I'm very lucky that I realized what my passion was, and it was an engineered accident. The same story I shared on my TEDx as well, but I would just reiterate in a small amount of time. So while I was doing my BTech in textile chemistry in 2003, so पहले year में engineering में they teach you engineering drawing, right? The drafter दे देते हैं आपको किसी भी object का top view, bottom view, side view बनाना होता है. So मैं शुरू से geometry में अच्छा था. 10th में, +2 में मेरे को geometry में बहुत पसंद, मजा आता था. And when I got this drafter in my hands, I kind of got to know कि अच्छा मुझे ऐसा tool मिल गया है. Now I can trace out any 3D object and I make it into 2D drawings. And I decided कि मैं इसको कुछ experiment करता हूँ. I went to the university's library, the huge library, for the first time. I think 2003 में जो पहली बार मैं library में step in करा, I didn't know it was so huge. So I went there. I searched for a book on airplanes, क्योंकि हमारे एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी में. सो एरोप्लेन्स की बहुत ही लिमिटेड, मेरे ख्याल से एक ही बुक मिली मुझे, वो भी एक ऐसे शेल्फ पे जहाँ पे स्पाइडर वेब्स थे, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया होगा पिछले 20 साल में, धूल से भरी हुई बुक. ठीक है, मुझे मिली बुक. एंड व्हेन आई ओपन द बुक, आई मीन रैंडमली व्हेन आई ओपन द पेज, आई सॉ अ 2 dimensional plans of a World War II एरोप्लेन F4F Grumman Wildcat. तो वो प्लान्स कैसे थे, उसका टॉप व्यू था, साइड व्यू था, बॉटम व्यू था, स्केल्ड अप. तो मुझे इमीडिएटली समझ आ गया कि मैं इस मॉडल को trace out करके I will make a 3D model out of it. But by that time I didn't, it was an instant decision that I will use paper, because paper easily available material है, आप mistakes कर सकते हो, and you don't have to invest money in purchasing and procuring paper. तो मैं कहा चलो paper से बनाते हैं. So I got the book to my place and started doing it. So after a month of analyzing that, उसको मतलब scale up करके drafter से कॉनिकल स्ट्रक्चर्स बना के अलग अलग विंग्स अलग बनाए, फ्यूसेलाज अलग बनाया, कॉकपिट अलग बनाया, जो टेल रडर वगैरह अलग बनाया. तो लास्ट में मैंने 1 महीने के बाद जब सब कुछ पेंट वगैरह करके उसको जोड़ा, तो वो सिंगल पॉइंट पे जुड़ गया वो एरोप्लेन. इट वाज अ बिग एरोप्लेन एंड आई कॉल इट एज एन इंजीनियर्ड एक्सीडेंट. सो एंड व्हेन आई सॉ दैट एरोप्लेन, आई वाज श्योर कि मैंने अपना पैशन फाइंड कर लिया. दिस इज माय पैशन, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन माय एंटायर लाइफ, बिकॉज आई रियली एंजॉयड सो मच. आई हैव ऑलवेज लव्ड एरोप्लेन्स. And making that aeroplane like a proper scale plane, जो लगता था उसी plane की तरह, World War II की तरह. So मुझे समझ आ गया था कि ये मेरा passion है. And that's another reason I wear aeroplane on my glasses. If you see, it's a MiG-21. Yeah. So I kind of carry my story of 2003 with me on my glasses, so people identify me with this. So so that's how I found my passion. And अच्छा, कंटिन्यूइंग विद दैट स्टोरी, जब मैंने एरोप्लेन तो बना लिया 2003 में फेसबुक नहीं होता था तब. आप लोगों को नहीं पता होगा, ऑर्कुट करके एक चीज होती थी. ठीक है, ऑर्कुट प्लेटफॉर्म होता था. सो ऑर्कुट वाज नॉट एज इफेक्टिव एज फेसबुक वाज. तो ऑर्कुट पे मैंने पिक्चर्स वगैरह डाली वेब कैम से खरीद के, मेरे पास मोबाइल वगैरह भी नहीं होता था हमारे पास, फोन कैमरा वाला.
तो वेबकैम से मैंने फोटो खींची, मैंने इंटरनेट पे मतलब हज़ारों मेल्स भेजी लोगों को। फिर एक अमेरिका में एक बंदा है मिस्टर डिवाइन बार्नेट, ही इज़ क्वाइट सीनियर टू मी, आई कंसिडर हिम माई गुरु। सो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसी भी की चीज़ें होती हैं दुनिया में, ऐसे भी लोग हैं जो पेपर मॉडलिंग एज अ हॉबी करते हैं। एंड देन ही टोल्ड मी द प्रोसेस ऑफ इट, कैसे बनाते हैं, मतलब आप एग्जैक्टली प्रिसाइज मॉडल्स कैसे बना सकते हो, मतलब एग्जैक्टली टू द स्केल। आपको ड्राफ्टर नहीं यूज़ करना, बट आपको 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं। सो ही सेंट मी सम टेम्पलेट्स, मतलब PDF फाइल भेजी मुझे PDF फाइल को बस उसको प्रिंट करना था, पार्ट्स को काटना था और जोड़ना था। एंड व्हेन ही सेंट मी दैट आई वाज लाइक कि भैया ये तो मेरा जिंदगी भर यही चलने वाला है, बिकॉज आई गॉट टू नो कि मुझे अपना पैशन मिल गया, एंड दैट इज माई इकिगाई। एंड आई थिंक आई हैव बीन डूइंग दैट since 17 years now, and I have no plans to leave it anytime soon. So yeah, that's how I found my passion, and that's my story, Seher. That's very beautiful, actually. So now I would want to know, how did a textile chemist end up being a software engineer? Was it a difficult transition? And also, how is the corporate life different from what we as students perceive it to be? Since you are an Okay, IT architect in a very reputed company itself, so yeah. another good question, Seher. Good that you brought it up. See, मेरे टाइम पे ना, जब 2003 में जब हम थे टेक्सटाइल केमिस्ट्री ACST डिपार्टमेंट था, अप्लाइड केमिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो अब आपके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ क्लब हो चुका है। पहले Yeah, ACST yeah, अलग डिपार्टमेंट होता yeah. था, है ना। सो तब मेरा बैच जब 2006 में प्लेसमेंट में बैठना था, तब तक वी वर नॉट अलाउड टू सिट इन IT कंपनीज हमें अलाउ नहीं करती थी। सो मी एंड माई फ्रेंड हर्षपाल, आई एम नॉट श्योर इफ इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और नॉट। सो बेसिकली मोस्टली हर्षपाल, ही स्ट्रगल्ड एंड ही फॉट विद द प्लेसमेंट ऑफिसर कि हमें क्यों नहीं बैठने दे रहे हो। अगर आप फिजिक्स BSc फिजिक्स को बैठने दे रहे हो, आप केमिस्ट्री को बैठने दे रहे हो, टेक्सटाइल केमिस्ट्री ने ऐसा क्या पाप करा जो आप हमें नहीं बैठने दे रहे। ठीक है, तो हमने उनको कन्विंस कर लिया कि अगली प्लेसमेंट में भैया हम लोग बैठेंगे। एंड डॉक्टर रजनीश अरोड़ा वाज देयर, वेरी 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 नाइस गाय, वेरी ब्यूटीफुल गाय। सो ही सेड ओके, वी विल अलाउ यू गाइस। एंड हम टेक्सटाइल केमिस्ट्री वाले बैठे। लकीली मेरी जब उस टाइम पे मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, OSM कौन सी मिल्स है वहाँ पे OCM, आपके, GT OCM, OCM. OCM, हाँ वो वाली Yeah. मिल्स पे मेरा टेक्सटाइल का चल रहा था, मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था। सो आई कुड अटेंड ऑल द प्लेसमेंट्स, राइट। तो इन्फोसिस का मेरा रिटर्न क्लियर नहीं हुआ, कॉग्निजेंट का शायद मैं ग्रुप डिस्कशन में बाहर हो गया था, या फिर उसका भी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ था। फिर एक्सेंचर लास्ट कंपनी बची थी। एंड देन व्हेन आई आई वाज लाइक होपलेस कि मेरा कहाँ से होना है यार, एक्सेंचर IT कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, मेरा कैसे हो रहा है। मम्मा ने बोला कि बेटा उठ, कोई बात नहीं। मैं सोया हुआ था, मम्मा कहते कोई नहीं बेटा, किस्मत का पता नहीं होता, जा, चला जा। तो मेरी मम्मा ने मुझे भेजा कि चल तू इंटरव्यू दे के, कोई टेंशन नहीं है। बिकॉज आई काइंड ऑफ थॉट कि यार मेरे से रिटर्न भी क्लियर नहीं हो रहा, एंड मतलब फिर इंटरव्यू में मुझे कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ विल आई डू इट। बट आई इनर वॉइस के सेट के नहीं करते हैं। आई वेंट देयर, मैं उस दिन मैंने मतलब इवन आई डिडंट इवन ब्रश माय टीथ, आई जस्ट वेंट विद माय फाइल, टी-शर्ट वगैरह पहन के चला गया यूनिवर्सिटी में। एंड हमारा रिटन टेस्ट हुआ, तब मैं कैट की तैयारी कर रहा था, तो मतलब रिटन टेस्ट करना ईजी था मेरे लिए। मतलब इन्फोसिस का मेरा क्लियर नहीं हुआ था फ्रॉम सम स्मॉल मार्क्स, बट एक्सेंचर वाज वेरी इजी, तो मैंने रिटन क्लियर किया। फिर ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने बुलाया, तो जब ग्रुप डिस्कशन में बुलाया तो आई एम गुड एट टॉकिंग एंड डिस्कसिंग में, तब से मतलब मेरे में एक ये स्ट्रेंथ थी कि मैं बात कर सकता था। सो आई काइंड ऑफ क्लियर द ग्रुप डिस्कशन राउंड एज वेल। एंड देन द मेन थिंग, HR इंटरव्यू हुआ। HR इंटरव्यू में भी कोई टेंशन नहीं है, HR में तो मेरे से 15 घंटे बात करवा लो, मैं बोल सकता हूँ अपने बारे में, एंड थिंग्स, तो दैट वाज आल्सो इजी। देन केम द टेक्निकल राउंड। उन्होंने बोला कि एक्सेंचर वालों ने कि व्हाई शुड वी हायर यू। मैं कहा because you have let me sit in the interview, it means that I have a chance to be hired, otherwise you wouldn't even let me sit, right? तो वो अच्छा आंसर था। एंड देन ही सेड के कंप्यूटर्स में क्या आता है। मैंने बोला मैं थोड़ा बहुत C पढ़ा हुआ है, आई कैन क्रिएट एल्गोरिदम्स, आई मे नॉट बी नोइंग द लैंग्वेज एंड ऑल, बट मैंने C पढ़ा हुआ है, तो एल्गोरिदम में से कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लो, मैं आपको फ्लो बता दूंगा। ये सेट छोड़ो, केमिस्ट्री की बात करते हैं। दैट गाय हैपन टू बी MSc इन केमिस्ट्री। में का बेड़ा गर्क अब मेरे को केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब तो मैं मतलब बच ही नहीं सकता, राइट। सो देन ही आस्क्ड मी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है। ऑल द आंसर्स आई गेव वाज रॉन्ग, मैंने सारे आंसर गलत दिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला जो हम रोज करते थे, मैंने वो भी गलत ड्राइव किया, ठीक है। ही आस्क्ड मी सम फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन का कौन सा, मुझे अभी तक सारे क्वेश्चन याद हैं, मेरे केमिस्ट्री मेरा ना शौक होता था। तो उन्होंने पूछा कि उसमें कैटलिस्ट कौन सा होता है, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया आसपास कैसे से होता है। तो देन आई मीन ही बिकॉज क्या होता है इंटरव्यूज में ना, अब मैं 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया मुझे, राइट। सो आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। आई हैव सीन दैट पीपल डोंट रियली लुक एट योर स्किल्स,
at a beginner level. People look at your confidence, your attitude, your your how you present, how you can explain things. अगर आपको नहीं भी आती तो are you being honest, आपके body language, आई pupil के expansion वगैरह को वो note करते हैं, हाथ काम तो नहीं रहे, वो सब देखते हैं. तो कैट में करियर लॉन्चर में तैयारी करता था, तो मुझे उन्होंने सब बताया था कि इंटरव्यू में कैसे बैठते हैं और ऑल दोस थिंग्स. देन ही सेड के केमिस्ट्री में मतलब एज आई टोल्ड यू ऑल द क्वेश्चंस वाज रॉन्ग. एंड फिर मैंने बोला कि सर आई हैव सम हॉबी, लेट मी शो यू माय पेपर मॉडल्स. तो तब मेरी एक वेबसाइट होती थी artwanted.com करके, उसमें मैंने उनको अपना मतलब प्रिंट आउट्स पहले लेके आया था मैं. तो रिज्यूमे के बाद मैंने ना 5-6 प्रिंट्स निकाले हुए थे अपने मॉडल्स के, जैसे ये मॉडल्स पड़े हैं ना, तो मैंने उनको वो दिखाया. देन ही इमीडिएटली गॉट इम्प्रेस्ड कि अच्छा ये भी पेपर से पॉसिबल है. एंड देन आई शोड के मैं ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे हूँ, मैं 9th मोस्ट फेमस आर्टिस्ट था 2006 में, उसी साल जब मैं एक्सेंचर में बैठा था. एंड आई मीन आई थिंक दैट रियली इम्प्रेस्ड हिम. एंड आई वाज नॉट श्योर बिकॉज 2006 तक टेक्सटाइल केमिस्ट्री का कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट आईटी कंपनी में नहीं गया था. तो मुझे पता था कि इन्होंने रिजेक्ट कर देना है, मतलब अभी तक नहीं हुआ तो क्या हुआ. नेक्स्ट डे व्हेन दे कॉल्ड अस फॉर announcing the final names, I think there were 350 people who appeared for the group discussion and they selected 44. एंड जैसे मैं हॉल में बैठा, प्लेसमेंट ऑफिस के सामने जो हॉल है, मेरे नाम भूल गया हॉल का, उसमें हॉल में बैठा है. जैसे मैं बैठा उन्होंने मेरा नाम ले लिया, आतमजीत सिंह बाबा. आई थिंक 3rd और 4th में मेरा ले लिया. मैं खड़ा हुआ, मैं रो पड़ा. आई स्टार्टेड क्राइंग, and I remember that, I couldn't believe कि मैं एक्सेंचर में मतलब प्लेस हो गया हूँ. And then I immediately called my dad. ते मैं पापा ने कहा, पापा मैं रो ही रहा था. पापा कहते कोई नहीं बेटा, नहीं हुआ तो कोई गल नहीं, रो क्यों रहे हैं. मैं कहा नहीं मेरा हो गया. That day I still remember, one of my best days of my life. And that's how Accenture. So I can say that my hobby really helped me in getting into IT. And I was the first person in my textile chemistry who went into IT. And after that बहुत सारे मेरे juniors हैं जो IT में जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं, गए भी हैं. And that's how it happened, textile से Accenture. फिर Accenture में जब मैंने join किया, the transition was not easy because of course जो लोग कंप्यूटर साइंस 4 साल जिन्होंने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है उनको ये तो पता है ना, सर्वर क्या होता है, यूनिक्स क्या होती है, C++ क्या होती है, they can understand those terminology. It was new for me. मुझे ये भी नहीं पता यूनिक्स का कंसोल होता है, SQL भी लिखी जाती है, मुझे कुछ नहीं पता था. सो फर्स्ट 3 months ऑफ Accenture इज अवर ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको 3 महीने के बाद एक एग्जाम होता है, उसमें आपको निकाल भी सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोग निकल भी जाते हैं, देन यू कैन नॉट अपीयर अगेन. तो उसमें 3 महीने मैंने बहुत स्ट्रगल किया. एंड देन भगवान था, रब था, एंड आई गॉट थ्रू Accenture एंड द जर्नी हैज बीन रियली अमेजिंग सो फार. मतलब 14 साल में आई एम राइट नाउ इन बहरीन. एंड मैंने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है, बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. मैं अभी 17th प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ अपने करियर का. And this is my 6th or 7th country where I'm put up. So yeah, so that's how transition was there from textile. उसके बाद मैंने textile का कभी नाम नहीं सुना, ठीक है. मैंने मतलब अपने alumni के साथ जुड़ा रहा हूँ, मेरे teachers अभी भी मेरे से बात करते हैं, but I never even thought of going back to the textile chemistry ever now. IT में जिंदगी बीत रही है अभी. Yes. That's very great. So you were a multi-talented person. Like you could play guitar, then you were also a part of the Dragon Boat sports team of Bahrain, and then you've also been a national level table tennis player. And then of course you're a family man, you're married to a beautiful wife, and then you have a daughter. And then you're also, on the top of all this, you're known for your intricate paper models that you make. So how do you manage your job and all of your hobbies? See, if you think like that, right? So it sounds very impossible kind of thing कि एक बंदा का इतना कुछ manage कर सकता है. Possible भी नहीं है. At one point of time you cannot do all of these things, but you can do all of these at different points of times. मतलब अपनी हॉबी को मैं पकड़ के रखता हूँ. मैं ये नहीं कि मैं गिटार रोज बजाता हूँ. जैसे मैं जिस दिन मुझे भूत सवार हो जाता है कि आई हैव टू प्ले गिटार, सो मैं वो अगला 2 हफ्ते 3 हफ्ते रोज गिटार बजाता हूँ. देन आई लीव इट, देन आई स्टार्ट मेकिंग मॉडल्स, देन आई लीव इट, देन आई गेट इनटू योगा एंड रनिंग एंड ऑल. सो आई एम अ क्यूरियस पर्सन, आई एम अ पैशनेट पर्सन. सो मैं जो पकड़ता हूँ दिल से पकड़ता हूँ, जो भी मैं करता हूँ दिल से करता हूँ. एंड juggling between my hobbies and my job, see, I've never I've never wasted my time. मतलब मैं जब से मेरे को समझ आई ना कि time is running and clock is ticking and ये time वापस नहीं आएगा जो आपके पास है. So मैंने तब से ना time waste करना छोड़ दिया. मैं weekends अपने utilize करता हूँ अपनी hobbies के लिए, family time, hobbies and job में जैसे Saturday Sunday हमारा off होता है mostly, तो वो मैं फिर time अपना
इन चीज़ों में बिताता हूँ। इवन ऑफिस आवर्स के बाद भी, जैसे ये जो बाइक है ना, मैंने एक्सेंचर में बैठ के बनाया था 2008 में, 2007 या 8 में, अपने डेस्क पे। ऑफिस आवर्स के बाद मैं इसको बनाता था, 2 महीने लगे थे मुझे अपने ऑफिस में बनाने में। So people used to go home, but I used to stay back at office and make this because these were my friends. I used to love making this. So एक passion अगर आ जाता है ना, तो मतलब पागलपन और passion में फर्क नहीं होता. So I mean that's how I've been able to manage it. And of course all my bosses, जितने भी मैंने jobs मैंने जितनी भी करी हैं, Accenture, IBM, Oracle, अभी मैं Avisys के साथ हूँ, all my bosses have always been very supportive. उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि यार तू अपना time waste कर रहा है, you know, you're not paying attention to the job. Maybe I was not doing that. I mean, I was actually paying attention to my job. So they never realized, मतलब they never, मतलब उन्होंने कभी ऐसा नहीं you know observe किया कि ये बंदा job पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मैं job पे भी serious था. So they were always supportive. कभी भी exhibition होती थी तो अपने team को बोलते थे कि आतम की exhibition में सबने जाना है. You know, Atam is going to talk here, so make sure that everybody is listening to the talk. So they were always very supportive. So ऐसा support अगर आपको अपने bosses के साथ मिलता रहता है ना, then everything is very possible, you know. And hobbies तो होनी चाहिए ना life में. I mean, without hobbies you can go crazy, you know. जिस तरह के pressure होते हैं हमारे job में, हमारे life में. अभी आप लोग college में हो, अभी आपको नहीं पता है. But once you get into the corporate world, you will realize कि किस तरह के pressures build up हो जाते हैं. Then you need to have some kind of a getaway thing. So hobbies really help you. Yep. Very true. So I've also heard that you made something for the Indian Army. So how did Indian Army come to know about your work and what did you make for them? Okay. Okay. I mean, 2011 में, नहीं 2014 में आपने सबने द वायरल फीवर का नाम सुना होगा, TVF guys, YouTube के one of the biggest, yeah, exactly. So TVF के साथ मैंने collaborate किया. उन्होंने मुझे बोला था कि एक रॉकेट, मतलब पूरी स्टोरी है, मैं वो नहीं बताऊंगा, अभी हमारे पास टाइम कम है, but they contacted me कि we are giving you 2 days to make us a rocket launcher. तो मैंने 1:1 स्केल में बड़ा सा रॉकेट लॉन्चर बनाया, RPG, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर. उनको दिल्ली से बॉम्बे मैंने कोरियर किया बाय एयर. उन्होंने अपनी एक बहुत वायरल वीडियो में यूज किया उसको, भाई हो करके. जय हो का स्पूफ है, भाई हो. एंड दैट वीडियो यू नो शोज माय रॉकेट लॉन्चर बीइंग यूज्ड. एंड दैट टाइम आई गॉट इन गुड रिलेशंस विद TVF गाइस. अरुणव कुमार उनके जो फाउंडर हैं, ही बिकेम अ फ्रेंड. 2016 में ही केम टू गुड़गांव. आई मेट हिम अगेन. आई सेड के सर 2 साल पहले कुछ किया था, अभी कोई बड़ा करते हैं, लेट्स कोलैबोरेट. एंड ही सेड फाइन, लेट्स डू इट. सो आइडिया क्या था? Idea was we will make something for our country. तो brainstorming के हमने बोला कि इंडियन आर्मी के लिए कुछ बनाते हैं, टैंक बनाते हैं. And we decided that we'll make T90 tank. So ये exactly जो मैंने टैंक पकड़ा होगा ना, ये मैंने उनके सामने उनके ऑफिस में बनाया था. So the whole concept was that I will make the tank in 2-3 weeks. You shoot the video because they have the best videographers and they are into videos, right? तो आप वीडियोस खींचो, वीडियोस लेना, एंड आई विल मेक दिस टैंक एंड वी विल मेक अ टाइम लैप्स वीडियो. लेट मी शो यू क्विक ग्लिम्स ऑफ दैट वीडियो. आई विल कम टू योर इंडियन आर्मी क्वेश्चन, आता हूं मैं, पहले मैं स्टोरी बता दूं. तो लेट मी शेयर क्विकली शेयर that video. Just a second. Yeah. Let me know if you can see it now. एक मिनट में कर रहा हूँ शेयर. No. Yeah. एक सेकंड, मैंने वो वॉल्यूम नहीं डाला था, एक सेकंड में वो भी कर लेता हूँ ना. शेयर कंप्यूटर साउंड, हाँ हो गया, ठीक है. यू कैन सी इट. सो ये जो वीडियो बनाया ना हमने, ये द वायरल फीवर ने बनाया था और हम दोनों ने कोलैबोरेट किया था.
You can hear me now? Yeah. या ओके सो ये वीडियो हमने बनाया, ये वीडियो हमने 15 अगस्त को पोस्ट किया, 2017 की बात है. एंड देन दैट वीडियो गॉट वायरल. फेसबुक पे 3 लाख व्यूज आ गए, मतलब विद इन 2 weeks. एंड इट ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज डेडिकेटेड टू इंडियन आर्मी, इट वाज सीन बाय द बिगेस्ट ऑफ द ऑफिसर्स, जनरल जनरल सबने देखा. And after a while I got a call from a brigadier sir, and he said that why don't you visit us in one of our brigades, and we will talk about something. मुझे लगा शायद they will felicitate me कि मैंने उनके लिए कुछ किया, तो they might give me a trophy or something. But I had no clue. I had no clue why they called me. So they took me. I mean, I reached there in the morning, and then they said, "Okay, चलो, young man, let me show you something which you like." So वे मुझे ले गए एक रेंज पे जहाँ पे ना 15-20 टैंक्स भाग रहे थे. They were doing some war games and all. मैं वो उस रेंज में गया उनकी जिप्सी में, and then they stopped the tank, and then they introduced me to a captain and told him that introduce this tank to this young guy Atamjeet. And I उस टाइम तक भी मुझे कोई क्लू नहीं था कि मुझे क्यों बुलाया. मुझे लगा ठीक है, मुझे टैंक की maybe they know that I love tanks and I love machines, and मुझे बिठाएंगे अंदर और मुझे राइड करवाएंगे. मैं ठीक है करते हैं. And then I went into the tank. I spent 3.5 hours in that sun. मतलब तब धूप फील नहीं हुई मुझे, ठीक है, इतनी गर्मी थी. डेजर्ट में मतलब हम थे, और टैंक के अंदर में मतलब आप सोच नहीं सकते, टैंक को हाथ भी नहीं लगा सकते, इतना गर्म था. ठीक है, उसके अंदर में गया, उन्होंने मुझे सारे बटन सिखाए कि ड्राइवर कैसे, कौन से बटन, कौन से गियर होते हैं. देन आई वेंट टू द गनर सेक्शन, देन आई वेंट टू द कमांडर सेक्शन. 300 टैंक में 3 लोग बैठते हैं, तो मैंने सारे बटन देखे, पेरिस्कोप देखा उनका, कि मतलब कैसे आप 5-10 किलोमीटर दूर का जो बंदा स्मोक कर रहा है उसका भी देख सकते हो कि वो कौन सी सिगरेट पी रहा है. इतना पावरफुल उनके लेंसेज होते हैं. आई सॉ ऑल ऑफ दैट. देन दे इनवाइटेड मी बैक, चलो लंच करते हैं. मैं लंच पे गया, एंड देन ब्रिगेडियर सर टोल्ड मी दैट कैन यू मेक अ टैंक फॉर अस विच इज like 6 times smaller than the original tank. So जैसे ये टैंक है ना, ये मैंने बनाया, ये 30 times smaller than the original tank. This is 1:30 scale. They wanted me to make 1:6 scale, जो कि 6.5 फुट लंबा टैंक है. And then I made this. Let me show you. मैं आता हूँ इन पिक्चर्स पे भी आता हूँ. Then I made this tank. ये जो टैंक है, this is made out of paper. This is the only piece in the world. कोई दूसरा बंदा नहीं है जिसने पेपर का इतना बड़ा टैंक बनाया. एक बंदा है जिसने मेरे बाद बनाया था, जब मैंने बनाया था तब मैं ही था, तो एक और बंदा जिसने बना लिया है, उसने कोई और टैंक बनाया. सो दिस इज वन पीस इन द वर्ल्ड विच इज नाउ विद द आर्मी हेडक्वार्टर्स. उनके वहाँ पे हेडक्वार्टर में इंस्टॉल्ड है. एंड व्हेन यू एंटर द हेडक्वार्टर्स, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू विल सी बिफोर यू गोइंग टू द ऑफिसेस. सो दिस इज 6.5 feet लॉन्ग. एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ पेपर. एंड इसकी भी बहुत प्यारी एक वीडियो बनाई थी, जैसे मैंने भी वीडियो दिखाई ना, इसकी भी वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे. आप पेपर मॉडल गुरु चैनल है, you check out, you will see the video of making of this tank. So that's how Indian Army happened. And chances से I kept on knocking the right door. तो वायरल फीवर के साथ मेरा काम हुआ, फिर मैंने उनके साथ ये टैंक बनाया, फिर आर्मी वालों ने देखा, फिर आर्मी ने मुझे बोला बड़ा टैंक बनाने को. सो थिंग्स चेन रिएक्शन होता रहता है. सो आई मीन आई थिंक द मैसेज हियर इज दैट कीप knocking the doors, don't shy away from telling people that what you do, what you are best at, because people wouldn't know what you are best at. जब तक आप अपनी मार्केटिंग नहीं करोगे, अपनी अपनी पीआर नहीं करोगे. तो मैं वो बहुत करता था, अभी भी. इवन इनफैक्ट the reason I'm wearing this aeroplane on my glasses is because this is my PR. People ask me कि ये aeroplane क्यों पहना हुआ है, so I tell them my story. So in a way I don't shy away from marketing myself, because you never know कि कहाँ से कौन सा दरवाजा खुल जाए. So that's always have been my attitude towards life. Yep. Yeah, following the omens, as you said. Yeah, follow. I mean, Alchemist. I think it's your favorite book as well. So there is a beautiful line, right? If you really want something, the entire universe conspires in helping you to achieve it. It's really true. I mean, ऐसा ही होता है. अगर आपको कोई चीज चाहिए ना, अपने आप ही वो चीज आपको मिल जाती है. मतलब everything gets into the place अपने आप ही. मतलब मेरे को जॉब मिलनी थी, मुझे मिल गई, because I followed the omens. मम्मा ने बोला कि जा इंटरव्यू देख के आ. Yeah. Like that happen. You have to just listen to your heart sometimes. That's it. Yeah, that's very wonderful. So, what was your first breakthrough when you realized that you were recognized as a paper modeler across the world? When you thought that, when you felt actually that you achieved fame, or maybe that people actually know you for your hobby or passion for paper modeling? I think that the first instance was again, as I told you, that viral fever ने जब मुझे बोला rocket launcher बनाने को.
So basically, a model takes. Let me give you an example. So this bike would have taken me 4 to 5 months to make. मतलब मेरे को बहुत टाइम लगा था ये बाइक बनाने में, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा ही लगे थे जहाँ तक मुझे याद है अभी, ठीक है. सो इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एन ओवरनाइट थिंग. सो दे सेड मी कि मुझे रॉकेट लॉन्चर चाहिए, वो भी बॉम्बे में, मैं तब दिल्ली में होता था, बॉम्बे में चाहिए 2 दिन में. So I kind of didn't sleep for the 2 nights. I made it. I made sure it's couriered, and I sent it to them. And when they, so they used in this movie Bhaiyo. होता क्या है, वायरल फीवर बहुत बड़ा चैनल है. So ये पहले अनाउंस कर देते हैं कि this day our video will come. So लोग वीकेंड पे होता है, वीकेंड पे लोग सुबह आके यूट्यूब पे बैठ जाते हैं and they keep refreshing the screen के वीडियो अभी आएगी अभी आएगी. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, they got a technical glitch. So they were not able to upload the video. So people were really getting impatient कि वीडियो क्यों नहीं आ रही. So they had to fill that gap. So what they did is they did a post on Facebook. They kind of shouted out my name that check this guy out, Atamjeet. He made this rocket launcher. उन्होंने ना वीडियो का वो शॉट का स्क्रीनशॉट उन्होंने वो पोस्ट में लगाया कि this rocket launcher is made completely by paper by this guy Atamjeet and check out his work. वायरल फीवर ने मेरे को शाउट आउट किया, वो बहुत बड़ी चीज़ थी बिकॉज तब मेरा फेसबुक पेज पे 1000 फॉलो लाइक्स थे. उसी दिन मेरे को 2000 और आ गए, तो 3000 हो गए थे. मतलब एक छोटे से पेज के लिए 2000 लाइक्स ऑर्गेनिकली आना वाज अ बिग थिंग. एंड दोज लाइक्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज टीवीएफ के फैंस दुनिया भर में, सिर्फ इंडिया में नहीं है. सो दैट वाज अ डे. मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि यू हैव ब्रोकन द इंटरनेट टुडे. नथिंग लाइक दैट हैपेंड. मतलब क्या होता है ब्रोकन द इंटरनेट मींस समथिंग एल्स, बट इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच. सो आई रियलाइज कि यार कुछ तो बड़ा किया आज जिंदगी में कि आज कुछ तो ऐसा हुआ है. एंड देन दे पोस्टेड द वीडियो. द वीडियो बिकेम मोर वायरल. मेरे ख्याल से 5 मिलियन व्यूज से ऊपर उसके ऑलरेडी हो चुके हैं, या 7 मिलियन से ऊपर. तो या दैट वाज माय फर्स्ट बिग ब्रेक थ्रू इन पेपर मॉडलिंग. एंड यप आई मीन यस. उसके बाद फिर चेन रिएक्शन होता है ना. देन टेडेक्स हैपेंड. योर स्टोरी ने मेरा इंटरव्यू लिया, बीबीसी टॉप गियर ने मेरा इंटरव्यू लिया, ऐसे बहुत इंटरव्यूज हुए. तो ये चेन रिएक्शन होता है. तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू इट्स ऑलवेज वो होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. पहली 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 अगर एक बार चीज चल जाती है ना, उसके बाद फिर वो इजी हो जाता है. मतलब यू डोंट हैव टू स्पेंड. तो पहली बार चलाना ही मुश्किल होता है, पहली बार व्हील घुमाने में टाइम लगता है. अगर वो घूम जाता है फिर उसके बाद यू हैव टू लेवरेज ऑन दैट. So it's always like that for everyone. Everybody's success story, is like that. And most people give up in the beginning, so they don't reach where maybe you reached. Sorry, I didn't get you, sir. You said right that the starting is what takes most of the effort and time and everything. True. And this is where most of the people give up. The moment they see any hurdle and something that requires their effort, they just think of giving up because that's easier than that's comfortable. And I think so 95% of the people, they prefer to live in their comfort zone and do not want to step out of that zone. So that is why they live a mediocre life. True. I mean, see, मैंने TEDx में भी ये 2 लाइंस बोली थी इसी पॉइंट के लिए. These are my own lines, by the way. एक पहला था कि पैशन एंड कंफर्ट जोन कैन नेवर गो हैंड इन हैंड. या तो पैशन फॉलो कर लो या कंफर्ट जोन में रहो. आप 2 चीजें नहीं कर सकते. आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा अपना पैशन फॉलो करने के लिए. नथिंग इज इजी. आपको लगता है ना बैठे बैठे हो जाएगा, कुछ नहीं होता बैठे बैठे. बहुत मेहनत करनी पड़ती है. कुछ भी किसी भी देयर इज नो ओवरनाइट सक्सेस. बहुत सारे साल, मुझे 17 साल हो गए यार. 17 ईयर्स के बाद मुझे GNDU ने इनवाइट करा है टू स्पीक. I've waited for 17 years in a way, right? So overnight नहीं होता. It takes time. And then the second line was that people need to take the first step. लोग पहला step नहीं लेते. Take the first step and physics will make you take the second one. It's like otherwise you will fall down. तो पहला step लो, वो अपने moment of inertia को cross कर लिया, उसके बाद फिर आप चलने लग जाओगे and things will fall in place. लोग procrastinate करते हैं, मैं भी करता हूँ, कई बार करता हूँ, but हमें we have to take that first step. हम बहुत प्लानिंग करते हैं कि यार मैंने अगर बुक लिखनी है तो मैं टाइटल क्या लिखूंगी, मैं क्या कवर पेज बनाऊंगी, मेरी लाइंस क्या होंगी. अब लिखना तो शुरू करो. just start writing it. Everything अपने आप ही कंपाइल हो जाएगा. So we just have to promise ourselves के शुरू करना है आज, हमें और नहीं वेट करनी. कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं आएगा. इट्स नॉट अ स्पेस शटल लॉन्च के आपको सब कुछ परफेक्ट कंडीशंस ही होनी चाहिए. कभी नहीं आता वो. आपको आज के आज ही आप शुरू कर सकते हो अपना जो आपका जो दिल करता है आप शुरू कर सकते हो. I mean, it's just that we are just stopping ourselves. That's it. Exactly. Moreover, we have societal pressures too.
Yes, exactly. Yep. So being an IT architect must have been a very big milestone for you. How did that happen? It's a good story. Just very similar to how Accenture ने मुझे, तब तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कोई, तो मतलब जीरो स्किल्स थी. So paper modeling helped me in getting into Accenture. So after that, after Accenture, I've spent Accenture to 5.5 years in Accenture. After that, I went to Birlasoft. Then I went to Oracle. Then I went to IBM. अभी मैं एविसिस करके एक कंपनी है उनके साथ हूँ, एसटीसी बहरेन में, सऊदी टेलीकॉम कंपनी बहरेन में काम करता हूँ. सो दिस इज वेयर आई एम IT आर्किटेक्ट. उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोडर था, कंसल्टेंट था. Hmm. आर्किटेक्चर मैंने अभी ज्वाइन किया है 2 साल पहले. हाउ डिड दैट हैपन इज, when I applied for this role in from India for a role in Bahrain, I always wanted to have this role because मुझे पता था कि मैं ये काम कर लूंगा, बट मैंने कभी ना हैंड्स ऑन किया नहीं था. आई न्यू द कॉन्सेप्ट्स, बट मैंने कभी हैंड्स ऑन नहीं किया था. सो आई सेड कि चलो इंटरव्यू देते हैं एंड लेट्स सी. So when my interview panel, in Bahrain, my boss might be in the participants right now, Nabil. So when these 3 guys 4 guys were taking the interview, on मैं दिल में इंडिया में था, ये लोग यहाँ पे थे, तो उन्होंने मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू लिया था. सो व्हेन आई Hmm. सेंट माय रिज्यूमे, मेरे रिज्यूमे में मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल का जो यूआरएल है वो है. उन्होंने मेरा लिंक्डइन देखा, लिंक्डइन से उन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल ढूंढा, यूट्यूब चैनल पे उन्होंने जाके मेरा ये टीन एनी टैंक वाला वीडियो देखा. एंड आई थिंक, Hmm. ऑफ कोर्स मैंने इंटरव्यू तो क्लियर कर ही लिया था, बिकॉज अदरवाइज स्किल्स तो चाहिए होते हैं. बट सिंस आई डिडंट हैव अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, my hobby gave an idea to them, the interview panel, that this guy can do something out of the box. अगर इसको दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, एंड इनफ नॉलेज दिया जाएगा, he will be able to do it. So in a way my hobby helped me getting this role. It has nothing to do with my job. Hmm. मैं टेलीकॉम में IT आर्किटेक्चर का काम करता हूँ. मतलब आई डिजाइन सॉल्यूशंस, प्रीपेड पोस्टपेड प्लान्स, एंड बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबा, बहुत बड़ा ओशन है वो. But paper modeling has nothing to do with that. There is no intersection of it. But still, this thing helped me getting into it because एक confidence मिलता है interviewer को कि this guy, if this guy is able to manage his job with his hobby, he has time management skills. तो आपके time management skills reflect होते हैं, आपकी planning skills reflect होती हैं. And these kind of attributes. अभी मैं जैसे interview लेता हूँ ना, मैं लोगों का Hmm. LinkedIn प्रोफाइल देखता हूँ. अगर मुझे दिखता है ना कि ये बंदा या बंदी, that boy or girl is into a hobby, I'm already Hmm. impressed. I'm already assured that these guys have time in their personal life also to Hmm. do something for them. If you do things for yourself, you are always happy. So Yeah. you will give more than 100% to your job as well. So it helps you. आपकी प्लानिंग मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत काम आती है. और हमारे लेवल पे आके, आर्किटेक्चर लेवल पे आके, इट्स ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट, प्लानिंग, हाउ यू प्लान आउट योर मंथ. एंड सो हॉबी होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको जॉब फाइंड करने में भी. इट साउंड्स वेरी डिफरेंट, बट माई ओन एक्सपीरियंस मल्टीपल टाइम्स दैट माई हॉबी हैज रियली हेल्प मी इन गेटिंग जॉब्स ऑल्सो, विच हैज नथिंग टू डू विद माई जॉब, बाय द वे. Okay. So, what is your biggest takeaway from your experiences, or I should say, takeaways? See, my biggest takeaway is, I have promised myself I will not waste time anymore. मैंने 2003 से लेके 2013 तक सिर्फ 3 एग्जीबिशंस लगाई थी पेपर मॉडलिंग की. 2 मैंने यूनिवर्सिटी में लगाई थी. लेट मी शो यू. मैं अपने अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाता हूँ, छोड़ी यूनिवर्सिटी की. सो दैट्स मी. 2003 या 4 की बात है. नेशनल साइंस डे था, तो मैंने अपने मॉडल्स से छोटे छोटे एरोप्लेन, जो मेरे पास 3-4 मॉडल्स ही होते थे, तो मैंने वो एग्जिबिट किए थे. दिस इज अगेन जैंक्सा करके, उन्होंने एक MBA वालों ने फेस्ट ऑर्गेनाइज किया था. मैंने वहाँ पे अपने लगाया था एग्जीबिशन. And this is one of the chief guests who was inspecting one of my paper model. It's a very big rifle, a gun है बहुत बड़ा. So Mm-hmm. I from these were my 2 exhibitions in university. And 2007 या 8 में मैंने एक एग्जीबिशन लगाया था बेंगलोर में. So 10 साल में मैंने सिर्फ 3 एग्जीबिशंस लगाए. एंड 2014 में आई रियली रियलाइज किया मैंने कितना टाइम वेस्ट किया है. वॉट एवर आई हैव नॉट बीन डूइंग, आई नीड टू कोप अप फॉर दैट टाइम. So my biggest takeaway is that stop wasting time. For message also to others as well, कि time is running out. आपको जो ये comfort zone लग रहा है ना, this has to be utilized, this has to be not wasted, because ये time वापस नहीं आएगा. अभी जैसे
क्वारंटाइन चल रहा है, हम लोग घर बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, लोग बहुत सारे लोग बोर हो रहे हैं, बट हैव वी रियलाइज दैट दिस टाइम विल नेवर कम बैक, मे बी दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज, you know, we have been given so much of free time in our hands, we are not traveling, we are not wasting our energy and stress in traveling, so are we really utilizing that time, because ये time वापस नहीं आएगा. So that's my biggest takeaway. And then follow your heart, you know, keep doing what you think is best for you without hurting others, without hurting the environment, you know. अपने अपने पैशन को, जैसे गिटार बजाना, गिटार बजा के मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ. सो you know, get into hobby, take a hobby to a very serious level, you know, make sure that you are known by your passion and not by your profession. तो आपका पैशन आपको एक ऐसी आइडेंटिटी देता है कि यू नो पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग यू with, oh, that guy who wears an aeroplane on his glasses, oh, that guy who made the tank for the Indian army, अच्छा, oh, that guy who, you know, who made the rocket launcher for TVF guys. कोई नहीं बोलता अच्छा वो that guy जो IT कंपनी में काम करता है, वो कोई नहीं बोलता, क्योंकि it's a mainstream thing, you know, लाखों लोग IT कंपनी में काम करते हैं. What is it that is, you know, that is uh, that is you know setting you apart from the herd. कुछ ऐसा है आप में, हर एक में होता है, आपको अपनी वो स्किल को उभारना है और उसको ऐसे मार्केट करना है कि आपकी अपनी एक पहचान बन जाए. सो आई वर्क ऑन दैट नाउ, दैट आई मीन आई हैव बीन रियली वेरी पैशनेटली वर्किंग ऑन माय ओन आइडेंटिटी. मेरे पेपर मॉडलिंग से ही मुझे लोग पहचाने. Okay, so I would also want you to share your 6P principle that I am very, impressed by. Okay, so अच्छा, TEDx की story. So what you're referring to is the talk which I gave it. Yeah. तो TEDx का क्या हुआ, 2014 अक्टूबर में मुझे मेल आया TEDx गीतम यूनिवर्सिटी से. It's a university in Vizag, Visakhapatnam. So they emailed me that you have been selected as one of our speakers out of 25 speakers. And so I immediately kind of, मुझे लगा कि इन्होंने गलत मेल भेज दिया मुझे कि मैं मेरे में ऐसी क्या स्टोरी है यार कि मैं TEDx में बोल, बिकॉज TEDx इज, जो मैंने TEDx सुना था, लोगों को लोग मोटिवेट करते हैं, अपनी यू नो स्टोरी बताते हैं. आई डिडंट रियलाइज दैट you know my story has something extraordinary. I really didn't 2014 tak. But then the curator of TEDx, he said कि नहीं sir, we know what we are doing, you just prepare a speech, prepare a talk. तो मैं ख्याल से 2015 की फरवरी या मार्च में या जनवरी फरवरी इसके आसपास मैं विशाखापट्टनम गया. मैंने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की थी, टू बी ऑनेस्ट. तो हमारा TEDx जिस दिन होना था उससे एक दिन पहले रिहर्सल हुई, ड्रेस रिहर्सल. तो मैं स्टेज पे आके फ्रीज हो गया. मैंने जिंदगी में कभी इतने बड़े ऑडियंस के सामने कभी बोला ही नहीं. यूनिवर्सिटी में भी मैंने कभी भी दशमेश ऑडिटोरियम के स्टेज पे जाके कभी नहीं बोला, मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली. इट्स नॉट दैट आई कैन नॉट, बट आई कुडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी. सो आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यू नो, कि मैं इतने क्राउड के सामने बोलूं. और जब TEDx जैसे प्लेटफॉर्म पे आप होते हैं ना, फ्लैश लाइट्स आपके मुंह पे पड़ती हैं और 5 कैमरेज लगे हुए हैं, यू गेट सो नर्वस, सो कॉन्शियस, आप सब भूल जाते हो. बिल्कुल, मतलब भूल ही गया कि मैं यहाँ पे खड़ा ही क्यों हूँ, मैं क्या सोच के आया था. एंड देन आई टुक माई पेपर आउट फ्रॉम माई हैंड एंड मैंने सारा पढ़ के बोला. तो क्यूरेटर ऐसे करके बैठे हुए थे कि यार ये क्या है, ये कल हमारा TEDx का टॉक है एंड दिस गाय डोंट इवन नो स्पीच. तो उन्होंने मुझे मतलब बोला कि सर दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड, वी गेव यू 2-3 months टू प्रिपेयर. मुझे उस दिन लगा कि यार नहीं, सीरियसली लेना है. फिर उस रात पूरी मैं रात मतलब शीशे के सामने खड़ा होकर मैंने पूरी स्पीच अपनी मतलब 50 बार कम से कम अपने आप मतलब अपने इतना कॉन्फिडेंस लाया कि कल बोलना है भाई, बोलना है. देन आई वेंट ऑन द स्टेज एंड दैट वाज द मेन डे, यू नो, व्हेन लाइट्स वर ऑफ. बस आपके मुंह पे लाइट्स पड़ती हैं, 300-400 बंदा ऑडियंस में बैठा है, यू नो, एंड द कैमराज आर रोलिंग एंड दैट्स योर वन टाइम, वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. अगर आपने स्क्रू अप कर दिया तो यू माइट नॉट गेट द चांस अगेन. तो इट वाज रियली नर्वसिंग. तो पहले 15 सेकंड तो मैं इतना नर्वस हो गया कि यू नो, हैव यू एवर फेल्ट के आपका मुंह का मतलब पानी बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल जैसे यू नो यू कांट डू एनीथिंग, लाइक फ्रोजन, टोटली फ्रोजन. आई वाज लाइक 15 सेकंड के लिए मैं टोटली फ्रोजन था. आप TEDx वीडियो देखोगे ना, यू विल सी मी नर्वस. देन आई सेड अ जोक, लोग हंस पड़े. तो फिर मैं मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ चल ठीक है, करते हैं. एंड देन दैट हैपेंड. Then the speech which I gave was around the 6P formula which you just brought up. So P as in passion, patience, persistence, precision, perfection, and एक और P था, मैं भूल गया. ठीक है. So ये procrastination तो 7th P है, जो नहीं करना. So there are 6 P's: passion, patience, persistence, perfection, precision, and practice. हाँ, ये 6 P's हैं. So I designed my talk in a way that these 6 P's, जो भी आप किसी भी चीज में आप डालोगे इस फॉर्मूला को, you will come out as a master of it.
तो आप मास्टरी अगर किसी चीज में अचीव करना चाहते हो तो these are 6 P's. And the seventh P is the procrastination, which you should avoid. We are all procrastinators. मतलब मैं आई एम द किंग ऑफ प्रोक्रास्टिनेटर्स. मैं कभी कभी सोफे पे बैठा रहता हूँ 3-3 घंटे कुछ नहीं करता, सोचता रहता हूँ कि ये करूंगा. एवरीबडी हैज दैट टेंडेंसी. बट Everybody is, yeah. it's important that have we realized that procrastination is bad. बस वो रियलाइजेशन आना चाहिए कि हाँ प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना चाहिए. करते हर कोई है, बट ट्राई टू अवॉइड इट, यूटिलाइज योर टाइम. So that's how What TEDx your, episode. yeah, what your actions basically, what you were doing. I mean, Yeah. most of the times we don't even realize what we are doing. We're just so mechanized and so used to our schedules that we don't even, realize that, अच्छा अब मैं ये कर रहा हूँ, and is this really what I should be doing? Because, एक True. routine बन जाती है, and then our brain just gets accustomed to all of our True. things. So, yeah. And that is where finding your passion helps you, because if you have found your passion na, then nothing can stop you. You yourself don't stop you. मतलब मैं आपको एक Exactly. एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू एन एग्जांपल. दिस पेपर मॉडल, दिस वन, ओके, ये मैंने यूनिवर्सिटी में ही बनाया था. सो मैं 72 आवर्स नॉन स्टॉप मैंने इस टावर को बनाया था, जो दिख रहा है ना आपको, जो टावर है. आई स्पेंड Yeah. 72 आवर्स विदाउट स्लीपिंग. मतलब इट वाज नॉट अ टॉर्चर फॉर मी, आई रियली लव्ड इट. मैं 3 दिन सोया ही नहीं था इसको बनाने के लिए. एंड यू नो एंड दैट्स द पावर ऑफ पैशन. अगर आपको पैशन मिल जाता है ना, तो आप मतलब एक अलग लेवल पे चले जाते हो. नथिंग कैन स्टॉप यू. फाइंड योर पैशन. एवरीबडी इज बॉर्न विद सम काइंड ऑफ स्किल्स, सम काइंड ऑफ फैसिनेशन टुवर्ड्स थिंग्स. कई लोगों को लिखने का शौक है, सो दैट्स योर पैशन. फाइंड इट एंड स्टार्ट डूइंग इट. लोग पैशन नहीं ढूंढ पाते हैं. वेरी वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. Yep. Yeah. So it is about time that I invite the audience to ask any questions or anything that they would like to know from Atam sir. You Yep, can raise sure. your hand. The option is available in the participants section, and the moderator will unmute you. Do we have any questions? In the meantime, Atam, you can drop your various social media handles in the chat box so that people can reach out and see your work. Sure. It's just Paper Model Guru because my computer is very far. I can't even type. So Oh yeah. it's Paper Model Guru. Just search me, look me up anywhere. सारे social media handles पे यही नाम है. YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, हर जगह, Facebook. Paper Model Guru से search कर सकते हैं. And I'm Paper very Model active on Guru. Instagram. Yeah. Paper Model Guru. Yeah. Can you check in the chat window if I typed it correctly? Yep. Paper Model Guru. Yes, exactly. It's correct. So Just Kirat- meantime, when people are gearing up, getting warmed up to ask questions, I would like to ask something. वो पेपर Sure. में मुझे लगा जैसे कुछ wood का भी use किया है. In one of the pictures I could see. Is it true? Let's see. Like for the wheels of these tanks. Okay, this one, right? Okay, let me show you how I made the wheels. Luckily, I have the video with me. Let me quickly show you it. जो wheels है ना, ये wheels paper ही है. Okay, I have a question from Jaskirat ji. Sir, do you use some special paper for this work? Yeah. So Jaskirat ji, the thing is that पेपर की जो थिकनेस होती है ना, वो पेपर का यूनिट ऑफ मेजर होता है. जैसे जीएसएम बोलते हैं, ग्राम पर स्क्वायर मीटर. तो मैं जैसे ये मोस्टली 180 जीएसएम, 150 से लेके 180 जीएसएम का पेपर यूज करता हूँ. जैसे ये बाइक है, छोटे जो मॉडल्स हैं. पर जो बड़े मॉडल्स होते हैं ना, उसको मैं 300 जीएसएम पे लेके जाता हूँ, क्योंकि वो इट्स अ थिकर पेपर जस्ट लाइक आपका जो विजिटिंग कार्ड पेपर होता है ना, वो 300 जीएसएम का पेपर होता है. जो आपका नोटबुक का जो पेपर होता है, वो 60 जीएसएम का पेपर होता है. सो देन यू कैन सी कि कितना डिफरेंस है. सो उसके बीच में 180 जीएसएम का पेपर यूज करता हूँ. एंड आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस इन पेपर मॉडलिंग, मुझे पता होता है कि ये पार्ट मुझे इस पेपर का बनाना है, व्हील्स मुझे इस पेपर के बनाने हैं, बिकॉज व्हील्स हैव टू बेयर द वेट. सो वो पेपर थिकर होना चाहिए. एंड एज बिंदिया मैम आस्क्ड, लेट मी क्विकली शो यू the video. Just a second. Let me the making of the T90 tank. मैंने वो वीडियो नहीं दिखाया अभी तक. अभी मैं स्क्रीन शेयर दोबारा करता हूँ. आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सी इट.
Yep. I'm a model guru, and my passion is to create three-dimensional replicas of highly detailed machines using just three things: paper, glue, and my hands. Paper modeling is not origami, neither it is paper mache. In fact, it is called kirigami, or in simpler terms, it's basically cutting and joining small bits and pieces of paper together to form three-dimensional shapes. I have been doing paper modeling from last 14 years, and every project comes with its own set of challenges and fun. And what I did this time was something I have always wanted to do my entire life. And this time I've created a 6 feet long, ultra detailed paper model of the T-90 Bhishma tank of the Indian Army. That's like So Bindya ma'am, your question would have been answered. So it's actually paper. There is no wood in it. It's hollow. Okay. Oh. So our questions I think have, but I have more questions if people don't have any other question. Sure, I can sure. ask. My question is, you said that you should not waste time, utilize each and every moment and all. But I mean, how do you relax them? For How do relaxing, you? you need relax Dekho, and just okay. do nothing. Once in a while, you have to do nothing. वो भी होता है. Even just yesterday there was a guy. I don't know which country. He made a video on YouTube doing nothing. That video went viral. 2 million views आए उस बंदे पे. वो उसकी वीडियो 2 घंटे की वीडियो है. वो सिर्फ कैमरे पे देख रहा है. What you said is right. I mean, you have to sometimes do nothing. आपके मतलब दिमाग में एक स्क्रीन सेवर लग जाता है. आप ब्लैंक हो जाते हो. Happens for me also. Everybody has that. But then people make it a habit कि मेरे को वो हैबिट भी बन जाती है कि वो पढ़े रहे हैं, बेड पे पढ़े रहे हैं या सोफे पे बैठे रहे हैं. So everything has to have a priority. मतलब आपको अगर बिल्कुल procrastinate करके बैठना है किसी शांति जगह पे, तो that's also has to be prioritized. But it shouldn't be a habit. तो and paper modeling is like meditation. जैसे आपने देखा वीडियो, मुझे 3.5-4 महीने 5 महीने भी लगे थे मॉडल बनाने में. So I'm cutting the part. It's kind of meditation for me. So it really helps me getting my sanity and जो pressure होता है, जो work pressure होता है, वो सब साइड पे हो जाता है. मैं I get into a different zone, different universe, parallel universe. बिंदिया जी आपके साथ में क्या क्या बात करूं उसके बारे में. But I really believe that get into some other zone and you zone out. So your hobbies actually make you zone out. If you talk to any sports athlete, right, who are successful, they will say that that's their happy zone, because it makes them forget everything else. दुनिया की जितनी भी टेंशन स्ट्रेस सब भूल जाते हैं लोग अपने जब अपने उस मैदान में होते हैं. So every hobby takes you to that zone. So it's really helpful. So I would like to add in Dr. Vindhya's question. Actually, doing nothing and sitting idly is actually not bad, because you can have, it is actually recommended by mentors that you should take out 30 minutes from your daily routine and just sit and introspect what actually you are doing, what did you do in the whole day, are you True. satisfied, and all of those things. So it's not really procrastinating, I think it gives you an edge. No, I that's not mean, procrastinating. Exactly, that is not procrastinating. That is very that you important. can, instead of हाँ. thinking it as procrastinating, you can change your thought, your mindset to that you're not actually procrastinating, but you're utilizing that time to think what life is to you, and Exactly. are you हाँ. living your life to the fullest, and हाँ. all of those things. Yeah. True. See, introspecting and procrastination are different. Introspecting तो आप Yeah. खुद पे workout कर रहे हो, right? You are working on your plans and your inner self. Procrastinating क्या होता है कि बैठे हैं यार, मैं करता हूँ, मैंने किसी को मेल करनी है, कर दूंगा, शाम को कर दूंगा यार, कल कर दूंगा. वो जो टालना होता है ना, लेजीपन, उसको procrastinate, वो नहीं होना चाहिए. Yeah. If you have a task, just do it. मैं उसको बोल रहा हूँ.
बाकी हाँ आराम से रिलैक्स होके बैठना तो वो तो बहुत yeah जरूरी है, मैं खुद and yeah I just want to talk about my very latest hobby. It's dragon boat. इंडिया में नहीं है ये स्पोर्ट. जैसे केरला में आपने देखी होंगी लॉन्ग बोट्स होती हैं जिसमें दो दो लोग बैठते yeah हैं रेस, राइट? So it's like just like that. mm-hmm. It's a Chinese thing, but it's a world level का एक sporting event है. So I'm into dragon boat racing and early morning 3:30 on Friday and Saturday weekend जब होता है यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, तो हम 3:30 बजे जाके प्रैक्टिस करते हैं, ठंड में भी गर्मियों में भी, एंड बिल्कुल भीग जाते हैं बिल्कुल, मतलब जैसे होता ना. एंड सो दैट आल्सो इज वन हॉबी विच आई हैव स्टार्टेड लविंग. मतलब मुझे लगा कि वो भी मेरा एक पैशन है, जैसे टेबल टेनिस भी मेरा पैशन हुआ करता था. सो यू कीप फाइंडिंग डिफरेंट थिंग्स एंड इट्स अप टू यू टू फॉलो इट और नॉट. सो कीप ट्राइंग थिंग्स, यू नेवर नो क्या आपको पसंद आ जाए. yeah Here we have we some have a questions. question Sure. yeah Question is, sir, do you material making waterproof? Actually, Jaskira ji, I don't need to make my model waterproof because I don't mishandle it. I mean, I keep my models in a glass box just like this. Let me give you an example. जैसे ये है ना, so I preserve my models in something like this. So I don't really have to make it waterproof. The max I do is I put silica gel sachets inside, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं ना, तो मैं वो डाल देता हूँ ताकि मॉइस्चर ना आए. बाकी मुझे कभी भी मतलब 17 इयर्स में आई हैव नेवर रियलाइज्ड, आई नेवर थॉट कि मुझे पेपर को वाटरप्रूफ बनाने की जरूरत है कोई. इनफैक्ट इवन फॉर दिस प्लेन विच इज ऑन माई ग्लासेस, दिस इज ऑल्सो पेपर. मैं मतलब इसको भी वाटरप्रूफ नहीं बनाया मैंने, जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज unless you really mishandle things, these are my babies, I cannot mishandle them, so I really don't have to make them waterproof. And to answer your question, if I put it in water and come back after 30 minutes, ये बिल्कुल खत्म हो चुका होगा, मॉडल खत्म हो जाएगा. So it's not waterproof. There is a question from Mehak Jolly, how to find out what is your passion? Very good question, Mehak. Mehak is my cousin's daughter. So see, finding your passion क्या होता है, you have to know what you love to do, right? हर एक बंदे को ना किसी चीज को काम करके में मजा आता है, तो आप उस चीज को पकड़ लो. जैसे if you like Mehak, I think you love to do dance, so try to do it and try to introspect के is that really your passion, and I think you will get that answer कि वो passion है कि नहीं है. जैसे आप डांस करते हो, so you know that is your hobby, your skill, and you can take it further. बट कई लोग मोस्टली क्या होता है कि पीपल डोंट इवन ट्राई आउट थिंग्स. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे लगेगा आपका पैशन है कि नहीं है. एंड 99% जनता पैशन नहीं ढूंढ पाती है, दैट विच इज वेरी सैड एंड इट्स अ प्रूवन फैक्ट. पैशन ढूंढना सबसे बड़ा टास्क होता है, उसके बाद इट्स इजी. यप. Gunvanti is asking, sir, tell the story aeroplane on your glasses, Seher, if I may. yeah sure So I think in the beginning I just told a brief about it. So I was as you said, Seher, I was introspecting, and मेरे लिए इंट्रोस्पेक्ट करने का एक बड़ा सही जगह है मेरी टॉयलेट सीट. तो मैं वहाँ पे कभी कभी ना बहुत टाइम बिताता हूँ, ठीक है, 2-3 घंटे भी बैठा रहता हूँ. एंड थिंकिंग के क्या करना, बिकॉज वो मेरा एक जोन होता है जो नोबडी डिस्टर्ब्स मी, अपना जोन होता है. मतलब आई वाज सिटिंग देयर एंड आई रियलाइज के कोई ऐसी चीज आइडेंटिटी होनी चाहिए, हर एक आर्टिस्ट की होती है. जैसे मार्क जकरबर्ग देख लो, वो एक ही कलर की टी शर्ट पहनता है, सो दैट्स हिज आइडेंटिटी. वो कहीं पे भी जाएगा ना, वो उसी आइडेंटिटी से पहचाना जाएगा कि वो ये. आप देखोगे कई जितने भी आर्टिस्ट है ना, उनकी एक आइडेंटिटी होती है, विजुअल आइडेंटिटी. कोई बड़े बड़े बाल रख लेता है, कोई खद्दर के कपड़े पहनता है, कोई एक बैग रखता है अपने पास. सो आई थॉट कि कुछ ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो लोग मुझे ना उस आइडेंटिटी से पहचाने. जिन्होंने मेरा काम देखा है इंटरनेट पे, या जिन्होंने नहीं भी देखा, तो दे शुड when they look at me, they should know that this guy is the same guy जिन्होंने मेरा काम देखा है, या फिर this guy is into something related to machines. So that introspection, that fruitful brainstorming within me, मैंने सोचा कि चलो एरोप्लेन बनाते हैं. I will put it on my glasses and because I don't touch it, nobody touches it, कोई body part नहीं लग रहा है इस पे, so I take care of the glasses. So मैंने बोला कि चलो एरोप्लेन बनाते हैं glasses पे. It was a very difficult decision because if you wear the glasses and just go out on the market, हर बंदा आपको देखता है. आप लिफ्ट में खड़े हो, 15 बंदे आपको देख रहे होते हैं कि ये चश्मे पे क्या लगा है, क्यों लगाया है, बिकॉज इट्स वेरी रेयर, nobody, I haven't seen it. But I took that bold decision कि मैं कोई ये आइडेंटिटी बनानी, बिकॉज nobody was doing it. अभी भी आज की डेट में कोई चश्मे पे कुछ लगा के नहीं घूमता.
So I'm very proud of that, and that's why I made my logo also, guy with aeroplane on his glasses with the small aeroplane on the glasses. So that's my logo. So that's how it happened, and since my first paper model was an aeroplane, and that's why I decided कि मैं aeroplane लगाऊंगा. That's my story. बड़ा short करके बताया मैंने, but okay. How did you get measurement for designing? Omkar, So basically, yeah. Uh, Thanks. So Omkar, good question, because thing is that if I want to make this bike, right? So I have to get blueprints. जो इंटरनेट पे आपको मिल जाते हैं, आप किसी भी कार एरोप्लेन का ब्लूप्रिंट्स ढूंढो ना, मिल जाएंगे आपको, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू. फिर उसके बाद आपको 3D सॉफ्टवेयर को यूज करके उसको ट्रेस आउट करना होता है, 3D मॉडल बनाना होता है कंप्यूटर पे. देन यू हैव टू अनफोल्ड इट. सो 3D मॉडल को आप 2D में अनफोल्ड करते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी का ग्लास है, राइट? पानी का ग्लास आप सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है. सो इफ यू डिजाइन इट इन 3D एंड यू हैव मेक इट इन 2D, क्या करोगे आप? सिलेंडर पे आप एक सीजर मारोगे एंड इट विल बिकम अ रेक्टेंगल, एंड जो नीचे वाला जो डिस्क है, दैट्स अ डिस्क. सो यू प्रिंट दैट रेक्टेंगल एंड अ डिस्क ऑन अ पेपर, प्रिंट कर लो उसको, फिर उसको ब्लेड से काटो, फिर उसको दोबारा ज्वाइन कर लो. सो दैट्स हाउ पेपर मॉडलिंग इज इन अ वेरी सिंपल टर्म. So it's very similar, just like I made this Iron Man ka helmet, that's also made out of paper, and the process is the same. You can make something as detailed as the bike and something as less detailed as this model. So paper modeling mein kuch bhi impossible nahi hai. And this is another model of mine, the Formula 1 car, which I made in Bahrain for Bahrain Grand Prix. So paper modeling में कोई किसी भी चीज़ की अंत नहीं है. This is one of the simplest models I've made, the Thor hammer. So yep, everything is possible with paper modeling. Yeah. Okay, there's one interesting question जिससे मुझे एक follow up question आ रहा है. Why हाँ जी. didn't you ever try to sell these models, like making them and then selling? It's a nice. I do that. I do sell them. Even I've sold a few pieces to them. I've sold my thing. So I sell these things. I sell the logo. I sell this. I do sell my models. Yes. So it's a hobby. Okay. Website नहीं है, because Is there a website? see, my Instagram, pricing? no, people directly message me on Instagram, because आज की डेट में ना आपको वेबसाइट होने की जरूरत नहीं है. मेरा ये मानना है, because मेरा कोई फिक्स प्राइस नहीं रहता. मतलब I decide the price based on अगला बंदा उसको यूज क्या करने वाला है. अगर वो मुझे बोलता है कि मैं एक ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पे 200 बंदा रोज देखेगा उसको, so I will reduce the price because it will help me. अगर वो बंदा बोलता है मुझे अपने रूम में रखना है, I will increase the price because it's not going to help me marketing wise. So I cannot have a website. फिक्स प्राइस नहीं है. सो इट्स अ कस्टम. मेरे को ऑर्डर आता है, कस्टम ऑर्डर आता है, मैं बनाता हूँ. यप. बट इंस्टाग्राम है जो मेरे को लोग वहीं पे मेरे को मैसेज करते हैं, हर कोई वहीं पे करता है. In university, I can find out if some place there where you can have some model exclusively. I wanted to Binay ma'am, donate it to university. So you I'll use actually, it. I really wanted to. In fact, I remember I pitched this idea to one of the HODs. मेरे को याद नहीं उनका नाम, अपने डिपार्टमेंट नहीं, किसी और डिपार्टमेंट में, I think architecture department में. I wanted to make that the library building with paper. मैं उनका मॉडल बनाना चाहता था, बट वो मटेरियलाइज नहीं हुआ. वो हुआ नहीं मटेरियलाइज. बट हाँ, आई वुड लव टू मेक दैट. मतलब नहीं हो जाएगा, Shop. but that I need to figure out where we can keep it, like where lot of people can see. आई थिंक जस्ट एंट्रेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपके स्टेयर्स ऊपर जाते हैं, बीच में आपका एक प्लेटफॉर्म आता है, फिर उसके बाद वो बड़ी अच्छी जगह वहाँ पे रख सकते हैं. I'm just giving you an idea, but university is so huge, you will find some place for sure. Yeah. I have a question from Yatin Batra. He wants to ask, can we use paper models to communicate science? I mean, some paper models of DNA structures or some physics models, because they would See, cost less. नहीं. The thing is that they will not cost less. Why? Because पेपर मॉडल बनता है हाथ से. अगर आप Okay. डाई कास्ट मॉडल्स की बात करो या प्लास्टिक मॉडल्स की बात करो, वो मशीन मेड होता है. सो द कॉस्ट इज Yeah. रिड्यूस्ड. पेपर मॉडल अगर मुझे Oh. आपको डीएनए स्ट्रक्चर बनाना है, आई विल चार्ज लॉट ऑफ मनी टू मेक दैट, बिकॉज I'm spending lot of Yeah. time making that, Yeah. right? It's तो handmade. इसका कोई Yeah, right. इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है. इट्स अ कलेक्टर्स आइटम. मतलब जो लोग कलेक्ट करना चाहते हैं मॉडल्स को एंड ऑल दोस थिंग्स. ऑल्सो इट इज यूज्ड इन साइंस फिक्शन मूवीज. जैसे कॉमिकॉन होता है, जैसे ये आप Yeah. कैप्टन Yeah. अमेरिका का शील्ड है, राइट? सो Yeah. you can use
as Comic Con, you know, as Yeah. a hobby, you know, इसका कोई industrial use नहीं होता, to be honest. Yeah. Mhm. Yeah. Okay, we have a few questions. Are you planning to make a model of Rafale jet, Yeah, the new actually, entry Yatish, into Air yeah, Force? I actually wanted to do it last night because the aeroplane on my glasses is MiG-21. I made Yeah. this MiG-21 जब last year I guess Indian Air Force के MiG-21 ने पाकिस्तान F-16 को जब गिराया था, that day I switched it to MiG-21. पहले मैं इससे पहले कोई और एरोप्लेन लगाता था. And now I think last night I decided that I will now put Rafale on it. So maybe tonight or tomorrow night I will make it. मैं बनाने वाला हूँ Rafale. इसका भी मैं पोस्ट डालूंगा अपने Instagram वगैरह पे. Yeah. Okay, my sister Okay. Geet is asking, what's your next model planning to make your new target? Actually, I've already started making Batman का mask. मैं कल रात को बना रहा था. Let me show. It's थोड़ा सा दूर पड़ा है. तो Batman का जैसे Iron Man mask है ना, वैसे मैं Batman mask बना रहा हूँ. which is simple model, but the complicated model which I'm making is the Batman का tumbler. जो Batman movie जिसने देखी होगी उसमें एक vehicle है Batman tumbler. So I'm making a 2.5 feet long model of Batman tumbler. It's not in front of me. It's in my Almirah. I forgot to bring it. तो आपको दिखाता. वो मेरा सबसे बेस्ट मॉडल होने वाला, अगर वो बन जाएगा जब भी, जैसे जो मेरा ये जो आर्मी का जो मैंने टैंक दिखाया था, दिस बैटमैन टम्बलर विल ओवर पावर इट इन लाइक बाय मैनी फोल्ड. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड मॉडल्स आई एम मेकिंग. तो बैटमैन टम्बलर बन रहा है. सो बैटमैन की चीजें बना रहा हूँ अभी मैं. Yes. Okay. So that Rafale question was asked by your friend Yatish Malik. Yatish. Yep. Yeah. So So I all I guess questions have we been don't. Do we have any more questions or? Okay. So it is about time that I thank Atam sir for spending a beautiful evening with us and giving us his time. And I would also like to thank Dr. Bindya and Dr. Venus, the conveners of Cyrox, for giving me an opportunity, and of course my fellow members of the working committee of Cyrox for giving me an opportunity to conduct today's session. I would also like to thank the participants for giving us their time and spending it with us. All right, over to you, Bindya ma'am, if you want to say. Even I would like to thank you guys. I've been waiting for this. It's a bigger thing for me than TEDx ever can be, because अपनी alma mater में बोलना is a different kind of an excitement. बहुत अच्छा एक honor है मेरे लिए, that you guys invited me. So I would really like to thank Bindya ma'am, Parambir Malli sir, जिन्होंने Bindya ma'am से मेरा introduction करवाया. Seher, Cyrox, and your the entire GNDU itself for having me here. I really loved it. Thank you. Yeah. Yeah, thank you so much. Thanks a lot.